Hello friends, we will see today a small example of preparation of profit and loss account from the following balances of Mr. Mohan. Here is a problem which is given. These what you see in front of you are figures from trial balance, or these are the balances from trial balance. Number one is office rent. This particular office rent might be clear to you. The rent which we pay for the office we hire. Next is printing expenses. Next is tax and insurance, advertisement, gross profit, salaries, stationery, discount allowed, traveling expenses, discount received. So these are some of the items which are mentioned in the trial balance, and we are supposed to prepare profit and loss account from this particular information. So we are preparing profit and loss account for the year ending 31st March, whatever is the year. So if you see, these are all indirect expenses which will be recorded in profit and loss account. So you see, to salaries, to office rent, to stationery, to printing expenses, to tax and insurance, discount allowed, that means what discount you have given to your customers, traveling expenses, advertisement, okay, and last what you get is net profit, that is the balancing figure. This what we are seeing is the debit side, okay. Next we will see the credit side, and that credit side total will come here, that is 2,54,000 rupees, and this 67,000 rupees is the balancing figure. So now you see, we are starting with the credit side. In the trial balance it was given what was the gross profit, okay. So that gross profit has been brought down. It is 2,50,000 rupees. Discount received, that means when you are purchasing something and when you receive discount from your customers, that is discount received. On the debit side, what discount we have given, that was recorded. Here what discount we are receiving, that is being recorded. So you see, this total is 2,54,000 rupees. That 2,54,000 is appearing on the debit side, again 2,54,000 rupees, and what we see is the balancing figure of 67,000 rupees, which is the net profit. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? हम जो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पुराना जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम उसको लेके आते, और कुछ हमको एडिशनल इनकम अगर कुछ हो मिलती है, जैसे यहाँ पर क्या है, आपको डिस्काउंट मिला, वैसे ही अगर आपको कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है बैंक से इसी टाइप के, या आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कुछ रिटर्न्स आते, ये सारे आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और वो आपकी इनकम रहेगी. सो फाइनली यहाँ पर अपन ने फिगर देखे 2,54,000. अभी देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी वो रहेगी, लेकिन आप एज स्टूडेंट्स ऑफ MBA आपको एक आइडिया आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं, बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट रहता है, कौन से अकाउंट्स आते हैं, कौन से आइटम्स आते हैं. अभी देखिए, आप लोग फ्यूचर में कुछ अकाउंट्स लिखेंगे नहीं, लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है उसका आपको इंसाइट रहना चाहिए.
उसकी आपको मालूमात रहना चाहिए, उसके लिए ये आपको सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने से बजाय आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रहता है, बैलेंस शीट में क्या रहता है, ये स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं, आपको एक ब्रॉड इसका अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं और खर्चा यानी डेबिट में जाएगा और इनकम यानी क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो जैसा ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखते सेल्स, वो एक तरीके का आपका रेवेन्यू है, राइट। तो वो किधर रिकॉर्ड होगा, राइट हैंड साइड पे, क्रेडिट साइड। और सारे आपके एक्सपेंसेस जैसा आपने परचेस करे, आपका ओपनिंग स्टॉक, ये सब आपका किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। आपने वेजेस दिए, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अब ये एक बात नोट करने की है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बैलेंस शीट में क्या है, आपके लायबिलिटीज़ कितने हैं और आपके एसेट्स कितने हैं, यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिख जाती है, ओके। तो ये है एक ब्रॉड आपको आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी देखिए ये एक प्रॉब्लम है, इसमें इसी टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें इतने डिटेल में क्वेश्चंस पूछ सकते, लेकिन आपको आपकी नॉलेज बढ़ाना है, आपको सब आपके जो करिकुलम में है वो आपको मालूमात रहना चाहिए। उसके लिए हम ये सारे एक्सरसाइजेस कर रहे ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे कि आपके स्टेटमेंट्स आप कैसे बनाएं। अभी यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक्सट्रैक्टेड का मतलब है निकाला गया, किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट से ये ट्रायल बैलेंस निकाला गया। ट्रायल बैलेंस मैं बार बार बताता हूँ आपको कि ये कुछ भी नहीं है, ये बैलेंसेस है, ठीक है। बैलेंसेस यानी बैलेंस क्या रहेगा, आइदर इट विल बी डेबिट और इट विल बी क्रेडिट, ओके। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 तक आपको बनाना है, ओके। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। सात मिनट का बस के बेटा, क्यों? अब दूसरा करेंगे।